Hello, aspirants. Welcome to CGB Mentors. And rather, I should call you and denote you as fighters. Yes, you all are fighters. It does not matter whether you're clearing RBI phase 1. It does not matter whether you are at the borderline or below the borderline. आप fighter हो और आप हमेशा fighter रहोगे, right? So I thought why not to make a video which is beyond any conventional video, है ना? It is not a strategy video. It is not about any other examination. Also, it is not about the expecting cutoff and whatnot जो usually channel पे videos जाती है. I thought to have a little chit chat conversation with you, little informal conversation with you, so that CGB is basically trying to understand your emotions, right? They know it, they understand your emotions, and we empathize with your emotions, right? अगर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे emotions हैं, you can comment down कि आपको इस वक्त क्या फील हो रहा है ना? एंड व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल अप्रोच कि अभी हमें क्या करना चाहिए. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ये आई वाज मेकिंग द पीपीटीज, मुझे एक दो लाइंस याद आ गई. आई वांट टू बेसिकली डिवोट दीज टू लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू. व्हेन आई वाज इन माय जर्नी, मैंने ये अपने लिए लिखी थी. एंड द लाइंस गोज बाय दैट you are a warrior, right? You are a warrior not because you have win the war, right? You are a warrior not because you have win the war. You are a warrior, but because you're fighting it, right? You're fighting it. That is more important, and still you will be a warrior, right? So let's start our video, right? So this I made PPT so that मुझे याद रहे कि मुझे क्या बोलना है, नहीं तो बहुत सारी चीजें एक साथ बोल दूंगी मैं. So beyond the exam, right? Beyond the exam, what is it? So this is not the end of the life goes on, right? Beyond this point life goes on. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता होता है कि life goes on, है ना? बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, चाहे कुछ भी आए जाए. पीपल कम, पीपल गो, एग्जाम कम एंड गो. एंड फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से एग्जाम आता है, फिर से आप उसकी प्रिपेयर करने लग जाते हो. इट्स जस्ट दैट अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ फ्यू डेज, मैटर ऑफ 1 week और मे बी फ्यू मोर डेज, मोर देन अ वीक. सो देखो मैम, हमें तो ये सब बातें पता है, आप हमें क्यों बता रही हो? देखो, I just want to say that you know it all, right? You are intelligent, you have grown up, you are preparing for RBI, you know it all. But फिर क्यों बता रहे हो आप? Why? Because there is sometimes you need a reminder. Sometimes you need a reminder. मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सबको सब कुछ पता होता है, बट अगर आपको कोई रिमाइंड करवा दे कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू आपको फील करवा दे, देन यू नीड अ रिमाइंडर. आपको पता है आपको सुबह उठना होता है ना? स्टिल यू पुट एन अलार्म, राइट? यू पुट एन अलार्म, दैट मीन्स यू सेट अ रिमाइंडर कि मुझे उठना है, राइट? अच्छा मैम, मुझे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सबने मुझे रिमाइंड करवा दिया. इट इज सो ब्यूटीफुल कि सबने रिमाइंड करवा दिया. बट देन द आंसर इज whether you are able to act on it, whether you are able to implement on it, right? That is far more important. You know it, right? People have reminded all of you their worth, your worth, and now what shall be done? You have to implement it on yourself, right? So this is not the end of life, and always remember, ठीक है? You have to change your attitude presently. आपको अपना attitude बदलना पड़ेगा. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? I'll let you know. See, maybe this video can go personal. Why? Because I'll be sharing my personal views, not views, basically my personal struggles, है ना? अब आप एक बात समझिए कि आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो फैकल्टीज है, दे हैव बीन थ्रू इट ऑल. सो नेवर थिंक दैट कि हमें वो चीज़ नहीं समझ में आएगी. सी, व्हेन आई वाज इन माय जर्नी, आई विटनेस्ड अ लॉट ऑफ फेलियर्स, राइट? And my attitude was like, I am a failure. I am not capable of doing things. I thought that कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. एंड जैसा आप सोचते हो, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कुछ भी, है ना, वो भी आपको ऐसे समझने लगते हैं, राइट? इट डजेंट मैटर हाउ मच दे आर पैम्परिंग यू. इफ यू आर नॉट वैल्यूइंग योर वर्थ, इफ यू आर नॉट वैल्यूइंग योर नॉट पैम्परिंग योर सेल्फ ना, देन आप ये बात समझ लीजिए, आप ये लिख लीजिए आप कहीं पे, आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा, नॉट इवन योर फैमिली. बिकॉज जो आप उनको फीड कर रहे हो, उनको भी यही लगेगा कि हाँ, अच्छा ऐसा हो रहा होगा, ठीक है? तो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड दैट यू आर नॉट अ फेलियर. मुझे पता है इस वक्त आप बहुत अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे होगे. मुझे तो 2 साल हो गए, मुझे तो 3 साल हो गए, मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, शायद मैं इस एग्जाम के लिए बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? A lot of things must be going on in your mind. So do not think that you are a failure. Why? Because failure, right? The examination is not going to decide who you are. The examination is not going to decide your hard work. You have done the required hard work. So you should be happy that what was required, I did my all. Rest is all the destiny. I'm not going to worry about the fruits. I'm just going to about to worry that I did my hard work best. That's it. If you have not done the required hard work, then you should not basically इतना गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है मे बी आपने इतना हार्ड वर्क नहीं किया होगा जितना रिक्वायर्ड है. बट व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर हार्ड वर्क, नेवर एवर थिंक दैट यू आर अ फेलियर, राइट? नेवर एवर थिंक दैट.
वाई? बिकॉज इन द सोसाइटल टर्म्स लोगों को लगता है अगर आपका प्री प्री निकल गया, फेज वन निकल गया, ठीक है, आप एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ गए हो, बट लेट्स ब्रेक द सोसाइटल नॉर्म्स, राइट? आई हैव डन इट. Failure is not something that failure should not be judged by your results. It should be judged that okay, you have done it, your hard work. ठीक है? So life goes on this point. Never forget that. Now coming to the again, but ma'am, do you have any idea about my hard work? As I repeat, I have the idea. So आप ये मत समझिए हमें नहीं पता है ना? My journey was also too long. I wrote 4 NABARD mains, I wrote SEBI mains also, I wrote UPSC also, I wrote CSIR mains also. हमेशा 2.69 मार्क्स से रहना, 1.25 से रहना, 0.9 से रहना, एंड वो सारे लोग सतावना भी देते थे. आई एम लाइक, आई डोंट नीड इट, है ना? मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी, मे बी आई विल टेक फ्यू डेज़, बट मुझे बहुत सारे आई नेवर रिक्वायर्ड पीपल्स इमोशंस. आई वाज़ इनफ फॉर माई सेल्फ. आप भी हो सकते हो, एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड समवन, इट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग, यू हैव पीपल अराउंड यू टू मोटिवेट यू, है ना? अभी इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अभी के लिए मेंटेन द स्टेटस को, राइट? व्हेन आई से मेंटेन द स्टेटस को, इट व्हाट डज इट मीन, राइट? व्हाट डज इट मीन? इट जस्ट मीन्स दैट जो है, जैसा भी है भी नहीं, ठीक है, ठीक नहीं भी है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा तो भी अच्छी बात है. अच्छा, मेरे इमोशंस हाई हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इट्स ओके. यू वांट टू गो आउट, ठीक, बट डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, डू नॉट जज योर लाइफ, डू नॉट थिंक योर फ्यूचर. अभी के लिए 5-6 दिन 7 दिन अपने आप को दो, है ना? अभी के लिए आप ये काम कीजिए, और गेन द कॉन्फिडेंस, गैदर योर सेल्फ. व्हेन आई से गेन द कॉन्फिडेंस, व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि when you are not up to it, you lose your confidence, you are not able to face people, you are not able to face yourself in the mirror. You think that what is happening with me, I'm not capable of doing things, right? So am I even worthy? Is the preparation worthy? तो आप अपने confidence को फिलहाल गेन कीजिए, और वो कैसे गेन होगा? when you change your attitude. And how you are going to change the attitude? by valuing your worth, by valuing yourself, है ना? उसके बाद गैदर योर सेल्फ. व्हेन आई से गैदर योर सेल्फ, अपने आप को समेट लो, अपने इमोशंस को समेट लो. एक एक देयर इज अ वायरल रील ना, व्हेन शी सी यू, अपने आप को मतलब कुछ तो है, वो अपने हैंड्स एंड लेग्स अपने आप को वो क्या करती है, टाके वगैरह लगाती है. तो गैदर योर सेल्फ, गैदर योर इमोशंस, है ना? अपने आप को, जो थोड़े थोड़े बिखरे हुए होंगे, मुझे पता है. आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस. उस चीज़ में है, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना? अब कैसे गैदर करना है, देखिए कैसे गैदर करना है, ये भी एक बात होती है. यही अगेन, हैविंग दिस कॉन्फिडेंस, चेंजिंग योर दिस एटीट्यूड, टॉक टू द पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड्स, गो आउट, गो स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, डू सम हॉबीज, एनीथिंग विच यू लाइक इट. और कुछ भी नहीं पसंद, ठीक है, कोई बात नहीं, बेड पे पड़े रहो, डज नॉट मैटर, बट डू समथिंग, डू नॉट ओवर थिंक, ठीक है? उसके बाद देखो, you are more than your any other exam. See, life goes on. We are not here to talk about the exams again. You are more than any other exam, है ना? ये कहने को थोड़ा सा अटपटा लगेगा, but ये सच है. Suppose if you are living for 70 years of life and you're giving the, let's say, 5-6 years to this examination, it is just a smaller part of your entire 70 years. Think this way. आप बहुत ज़्यादा valuable हो अपने exam से, ठीक है? चलिए, नाउ दिस 1 वीक मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ दिनों के लिए जस्ट मेंटेन द स्टेटस को. अब मैम, ये सारी बातें तो इमोशनल बातें होगी, ये सारी बातें तो मोटिवेशनल बातें होगी, बट हमें तो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए. नॉट वरी, है ना? हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके आई है कि अभी मैम क्या करना चाहिए. मुझे तो पता नहीं क्या करना चाहिए. आई एम कंफ्यूज अबाउट माई लाइफ, राइट? सो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी एज क्या है ना? आपकी एज क्या है? सपोज यू आर बिलो 26, और लेट्स से अराउंड 26-27 आप अगर आप हो, एंड यू आर आफ्टर पोस्ट 27, मे बी लेट्स से 28-29, ठीक है, टिल 30. और फॉर ओबीसीज का 33 ईयर्स रहता है, तो आप ये सोच सकते हो कि मैं 31 की हूँ, ऐसा यू कैन थिंक ऑफ. नाउ सी योर एज. With respect to that age, see all these things. For example, how much time and time management, कितना टाइम आपके पास है, क्या आप टाइम मैनेज कर पाओगे? इफ यू विल वर्क समवेयर, क्या आप टाइम मैनेज कर पाओगे? कितने मेरे पास रिसोर्सेज है? व्हेन आई से रिसोर्सेज, इट इज अबाउट एवरीथिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द फैमिली सपोर्ट, द वेरियस अपॉर्चुनिटीज विच यू मस्ट बी हैविंग इन योर लाइफ, ओके, द फाइनेंशियल सिचुएशंस एज वेल. ओके, एक सेकेंड. देन, और आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, आपकी एज क्या है. सो प्लान ऑल दैट, राइट? प्लान ऑल दैट, ठीक है? अभी मत करना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, और उस चीज़ को आप प्लान कीजिए. नाउ सपोज आपको एग्जाम में हो गए 3-4 साल, आपका एज है 28-29, आपको लगता है मैं क्या करूँ, मैं तो सोसाइटी उसमें फिट नहीं बैठ रहा हूँ. पहले तो सोसाइटी के बारे में, ठीक है, हाँ आई नो, कहना आसान होता है बट करना मुश्किल होता है, बट ठीक है.
अभी के लिए आप अपने बारे में सोचिए. Post that, what you have to do is what you have to do is think about this age, right? And think that मेरे पास क्या क्या perspectives है, ठीक है? क्या मेरे पास फैमिली बिजनेस है, क्या मुझे कोई बिजनेस करना है, क्या मैं किसी चीज़ में किसी चीज़ का लेट्स से वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं पढ़ा सकती हूँ, क्या मैं बैंक में जॉब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कोई भी, क्या मैं पार्ट टाइम वर्क करना है या मुझे वो करना है. मुझे ऐसा लगता है कि जिस ने अगर डेडिकेटेडली 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करी है, नाउ द पर्सन नो इज ऑल, ही और शी नोज द बेसिक्स. नाउ उसको क्या करना है, उसको सिर्फ करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट करना है और प्रैक्टिस करनी है. नाउ सिंस लेट्स से यू वांट टू प्रिपेयर, you really want to prepare it, but you think that it is something, nothing, like it is something which I cannot be dependent on it, so I want to work. So at this point of time you can find a job, you can find a work, and then you can study for 3 hours daily and combine your schedule in such a way while managing your time, so that you're confident about your life also, you are secure also that I have a job. Post that you are working on your dream also, right? Things can go in hand in hand. I know it's difficult, sometimes it is difficult to manage the things, but अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको ऐसा दोनों चीज करना पड़ेगा, तो भाई करो. यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, यू कैन डू इट. बट लेट्स से आपका एज अभी 25 है ना, 26 है, एंड यू थिंक दैट चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को टाइम दे सकती हूँ, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, आई डू हैव टाइम, आई डू हैव रिसोर्सेज, देन गो फॉर दिस. 1 साल अपने 2-3 एग्जाम्स एक साथ निकालो, राइट? अब देन देयर बचे स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज में इंपॉर्टेंट भूल गई, सी द मार्जिन, है ना? सिर्फ सी द मार्जिन. अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया है और फिर आप एक बहुत कम मार्जिन से रहे हो, देन डू नॉट गिव अप गाइस, रियली, है ना? गिव अप मत कीजिए. मैंने भी गिव अप नहीं किया था, क्योंकि मेरा लेट्स से first means it was just by 3.25 marks, second makes 2.5 marks, third means I was able to clear it. When I know it, I'm capable of doing it. बस आप 1.5 नंबर से रह रहे हो, 0.9 नंबर से रह रहे हो, it means you are capable of doing it. but अगर आपको लगता है लेट्स से कि मेरा मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है, मार्जिन ज़्यादा है, मतलब लेट्स से कट ऑफ 100 जा रही है और मेरे नंबर आ रहे हैं 60, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन है. अब आप ये देखिए, क्या मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था फिर भी मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, या मैंने हार्डवर्क ही नहीं किया इसलिए 60 मार्क्स आ रहे हैं? आपने हार्डवर्क नहीं किया, दैट मीन्स यू नीड टू डू हार्डवर्क. आपने हार्डवर्क किया, ठीक है, फिर भी आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स दैट यू हैव टू सी कि क्यों आपके कितने कम मार्क्स आ रहे हैं. इज इट द क्वांट, इज इट द रीजनिंग, इज इट द जीए? अगर आपको लगता है कि मैं आपको बस देखो, आई एम जस्ट trying to bifurcate all the things for you that how you have to think. अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट और रीजनिंग टफ है और आपको लगता है कि चलो मुझे क्वांट मेरे को डिफिकल्ट लगता है, देन स्विच टू एग्जाम, अदर एग्जाम्स लाइक नाबार्ड, स्विच टू द एग्जाम अदर एग्जाम्स. ना वहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग्स मिलेगी, ठीक है, पूरा आपको सेक्शनल टाइमिंग्स होगा नहीं क्वांट और रीजनिंग का अलग से, ना ही आपको इसमें मेरिट में जाना है, यू जस्ट हैव टू मेक अ सेक्शनल कट ऑफ, ना आपके मार्क वहाँ पे मार्क्स ऐड हो गए, तो स्विच टू द अदर एग्जाम्स दैट इज कंफर्टेबल टू यू, डू दैट थिंग, राइट? तो ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाउ यू हैव टू थिंक. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर इज द स्किल्स. देखो, जब आप इस एग्जाम में होते हो तो आप अपनी स्किल्स पे काम करना भूल जाते हो, क्योंकि आफ्टर वन थिंग आफ्टर वन थिंग आफ्टर वन थिंग, मैंने भी ये गलती की थी. तो अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट, एआई टूल्स, बहुत लेवल ऑफ स्किल्स होते हैं. देन द सर्टिफिकेशंस आल्सो दैट आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. यू कैन बिकम प्रो इन ऑल ऑफ दैट, एंड देन on the basis of that, right, अगर आप उस पर अच्छे से काम करते हो, you can get some kind of work, some kind of job if you're interested in doing all of that in any kind of bank, right, a private bank. Till then you can then on besides आप अपने वो भी कर सकते हो, काम कर सकते हो. तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक एग्जाम पे बिल्कुल सारा दिन रात, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर लेट्स से अभी एग्जाम है, अगर आपको नेक्स्ट टाइम देना है, व्हाट आई नो इज दैट आप पूरे साल या जो भी 7 महीने का जो भी मतलब साइकिल होता है, आप पूरे साल नहीं पढ़ते हो या पूरे 6-8 महीने नहीं पढ़ते हो, आप सारा दिन नहीं पढ़ते हो. यू हैव टाइम, यूटिलाइज दैट टाइम, utilize that time in basically encouraging yourself for the skills. It will boost your confidence, it will give you the job, it will give you the work, any kind of thing. ठीक है, चलिए. सो ये आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आपको अब किस तरीके से, है ना, डिसाइड करना है कि मुझे आरबीआई देना है, क्या मुझे नाबार्ड देना है, क्या मुझे काम के साथ साथ एग्जाम्स देना है, क्या मेरे अटेम्प्ट्स अगर हो गए हैं तो मुझे ऑब्वियसली आई हैव टू सर्च द वर्क. ऐसे तो ये उन लोगों के लिए है जिनके अटेम्प्ट्स बाकी हैं, क्योंकि जिनके अटेम्प्ट्स नहीं बाकी है तो वो तो नहीं देखेगा ये वीडियो. देन गो विद योर इंट्यूशन, टेक द डिसीजन. आफ्टर दैट ऑलवेज ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन योर इंट्यूशन. जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, जो आपकी आत्मा कह रही है, आप वो कीजिए, ठीक है, आप वो कीजिए. एंड टेक द डिसीजन कि अभी मुझे क्या करना चाहिए. गोन आर दोज डेज जब आप एक जगह
उसी उसी चीज़ पे देखो, आप मुझे पता है आप खड़े होगे, उठ खड़े होगे बेड से, है ना? या जो भी है, मेरे साथ तो ऐसा होता है ना? 2-3 दिन लग जाते थे जब आपका रिज़ल्ट आता है और बस ये तो होना ही है ना? आज नहीं तो कल यू विल बी आउट ऑफ दिस जर्नी, यू विल बी आउट ऑफ दिस सर्कल, यू विल बी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. It is just that now how to make your life better, how to this work on your hobbies. Yes, this is very very important, right? हम एक जर्नी में इतना घुस जाते हैं कि हम किसी हॉबीज पे काम नहीं करते, हमें लगता है अरे मुझे तो सारा दिन पढ़ना है, जबकि ये सच आपको भी पता है आप सारा दिन नहीं पढ़ते हो. इवन इफ यू स्टडी फॉर 8 hours यू हैव कितना 16 hours, राइट? वर्क ऑन योर हॉबीज. हॉबीज कुछ भी हो सकता है, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, आपकी मेंटल ट्रेनिंग, आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, एनीथिंग विच यू लाइक, राइट? एनीथिंग विच यू लाइक, यू कैन work on that. Now why I'm saying is because it will help, it maintains the calm, it will help to increase the patience. And trust me, आपने जो किया है, आपने जो करके दिखाया है, दिन रात जो मेहनत की है, सुबह जल्दी उठे हो या रात को लेट सोए हो, 16-16 घंटे या 18-18 तो नहीं, मे बी कुछ लोग तो पढ़ते भी है उतना भी, या 10-12 घंटे ऑन एन एवरेज, लेट से 10 आवर्स आप ड्यूरिंग द एग्जाम पढ़े हो. ट्रस्ट मी, वी नो इट ऑल एंड यू हैव डन द हार्ड वर्क. डू नॉट जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ, है ना? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द कॉम्पिटिशन. अगर आप अकेले एग्जाम देने जाओगे आप क्लियर कर दोगे, या आप ये लगाओ कॉलेज में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते थे, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है. सो नेवर डाउट योर सेल्फ, नेवर डाउट योर कैपेबिलिटीज, है ना? सो दिस वॉज अ चिट चैट, दिस वॉज अ कन्वर्सेशन विच आई वॉन्टेड टू ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू. आई नो इट इज अनकन्वेंशनल बट आई थॉट वाई नॉट, है ना? और अगर आपको अपने इमोशंस शेयर करने हैं, यू कैन कमेंट डाउन इन द बॉक्स. एंड ये मत सोचना कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा. देखो, अभी शायद आपको ना समझ में आए, इफ यू आर बिलो 25 आपको बाद में समझ में आ जाएगा. नो वन गिव्स अ डैम, नो वन गिव्स अ डैम हु आर यू ऑन द सोशल मीडिया चैनल, व्हाट इज योर नेम, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. जस्ट शेयर योर इमोशंस आउट. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछिए, आई पर्सनली विल सी टू इट, आंसर इट, एंड टीम वहाँ पे आपको कमेंट कर देगी, है ना? मैं कमेंट नहीं करूँगी, मेरे व्यूज़ होंगे एंड टीम कमेंट करेगी. और भी कुछ अगर आपको पूछना है, लेट्स से टू द एनी अदर एग्जाम और लेट्स से, तो you can talk to us, mail to us. Thank you so much. I hope this video was helpful. I'll be just grateful and happy अगर आपको ये वीडियो 2 या 3%, 5% भी हेल्प कर पाई है ना, इन योर जर्नी. दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू so much for watching this video. See you and be happy. Believe yourself, trust yourself.